बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम वकास महमूद मान है। आज हम ज़िला शेखुपुरा के एक शहर मानावाला में मौजूद हैं, दो भाई ज़मान और राशिद के घर पर। ज़मान जो कि 26 साल और राशिद जिनकी उम्र 20 साल है, इनके घर पे मौजूद हैं। इन दो जवान लड़कों का आज से 1.5 साल पहले पुलिस वैन के साथ एक्सीडेंट हुआ। इन लोगों ने हर जगह पे फरियाद की, किसी ने इनकी नहीं सुनी। आज इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। ज़मान साहब, आप ये बताइएगा कि आपका ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी। ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘਰ, ਅਤੇ ਸ਼ਦਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਸਰਾਂ ਦਾ ਸੂਆ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਜੀ। ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 11 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਅਤੇ अच्छा, तो जो आपका एक्सीडेंट हुआ है उसमें आपने जैसे मुझे पहले बताया कि आपकी 4 हड्डियां टूटी हैं, तो उसका आपका कोई इलाज हुआ किसी जगह पे? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ ਇਲਾਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਮਿਊਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਕੁ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਛੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਗੋਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀਏ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਮਾੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ। अच्छा, जो आपके छोटे भाई का ऑपरेशन हुआ है उनके ये घुटना जो है, आपके घुटने की क्या पोजीशन है जी? अब जाके हमारा घुटना ठीक हुआ है कि पूरा साल ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭੜੀਚਿਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਪੈਣਾ। नहीं, तो आपका घुटना फिर ठीक तो नहीं ना हुआ? वो तो मतलब ख़राब हो गया कि नया घुटना डलेगा, तो इसका मतलब ठीक तो कोई नहीं हुआ। कि जख्म अब जड़ा ना कि अब जख्म जाके ठीक हुआ है, गोडा नहीं ठीक हुआ कि लत नहीं मेरी पूरी सही हुई। और आपसे बिल्कुल चला नहीं जाता, आप उठ नहीं सकते अपने आप? नहीं ज़मान साहब, आप उठ सकते हो? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਕੂ ਫਾਰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਲੇਟ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਲਾਣਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। मतलब आप जो है वो वॉशरूम भी खुद नहीं जा सकते? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ। आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि आपकी हड्डी 4 जगह से टूटी है, हाँ जी। और आपका ये जो बायां बाजू है, आपका बायां जो हिप है, आपका पिंडली है और रान है, ये सारी आपकी हड्डियां टूटी हैं, और टूटी हुई हड्डियों से आप यहाँ पे पड़े हुए हैं। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਚੂਕਣਾ ਹੈ, ਚੂਕਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਾਜ਼ੂ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, LEK 9909 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ। जैसा कि ज़मान साहब बता रहे हैं कि 1.5 साल से ये दोनों भाई टूटी हुई हड्डियों के साथ इस सर्दी के आलम में बिस्तर मर्ग पे पड़े हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इनकी खाला मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या किसी पुलिस वाले ने या किसी हुकूमती अहदेदार ने इनकी कोई हेल्प की? कोई नहीं, बड़ा रुले हैं बच्चे ने। 1.5 साल हो गया जी। शेखपुरे भी गए हैं, पंजाब भी गए हैं, लाहौर भी, ओ पर खुली कचहरी भी गए हैं, कोई किसी बात नहीं लई। बच्चे ने 1.5 साल हो गया ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਵਸੂਲ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। तो आप मुझे ये बताएं कि आप ने पहले थोड़ी देर बताया था कि डीपीओ के पास आप गई थी, तो उन्होंने क्या कहा आपको, डीपीओ साहब ने? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕੜਮੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਏ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ। मतलब आप पुलिस के पास गई हैं, आप अदलिया के पास गई हैं, किसी ने आपकी कोई बात नहीं सुनी? ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 500 5000 ਦੀ 10,000 ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਨੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ? ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਮਦਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है जी। दोस्तों, जैसे आपने ज़मान और राशिद और इनकी खाला की ज़ुबानी सुना कि पुलिस वैन के साथ इनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें इनके बकौल सरासर गलती पुलिस वैन की थी, लेकिन वो इनको वहीं छोड़ के निकल गए। ये लोग 1.5 साल से टूटी हुई हड्डियों के साथ, ये ज़मान ने मुझे बताया कि इसकी टांग सुकड़ गई है, ये लोग हिल नहीं सकते, वॉशरूम नहीं जा सकते। एक की उम्र 26 साल है, एक की उम्र 20 साल है, 2 जवान। और ये घर अगर आप देखें जिसमें हम बैठे हुए हैं, एक कमरे का घर है जिसमें 7 लोग रहते हैं। इन लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, ये कैसे कहीं पे जाएं और अपना इलाज करवाएं? ज़मान मुझे बता रहा है कि ये लोग इतने पैसे भी नहीं हैं कि कोई गाड़ी किराए पे लेके हॉस्पिटल तक चले जाएं। तो हमारी हुकूमत से और वज़ीर आज़म से स्पेशली और वज़ीर आला पंजाब से पुरज़ोर मुतालबा है कि इन लोगों का कुछ इनके साथ हेल्प की जाए। इन लोगों की जो ये जिस मुआशी तंगी में से ये गुज़र रहे हैं, ये लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते, कोई अपना ब्लेम लेने को तैयार नहीं है। पुलिस कहती है कि हमारा कसूर ही नहीं है। अदालत में ये लोग गए हैं, अदालत ने कहा है कि पुलिस को इन FIR काटी जाए, लेकिन पुलिस ने FIR नहीं काटी। सो पुरज़ोर मुतालबा है जी पुलिस से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से कि इन लोगों का फिल फौर इलाज करवाया जाए। राशिद और इनकी खाला तीनों ने बताया कि इनका एक्सीडेंट 1.5 साल पहले हुआ और ये लोग टूटी हड्डियों के साथ बिस्तरे मर्ग पे पड़े हैं। इस शदीद ठंड में इस घर की हालत देखी जाए, एक कमरे का मकान है, 7 अफराद यहाँ पे रहते हैं जो अपने रोज़मर्रा के खाने पीने से मजबूर हैं। ये लोग इलाज नहीं करवा सकते। आज से चंद दिन पहले हम लोग इनको एम्बुलेंस में DHQ शेखुपुरा लेके गए, इनके एक्सरे करवाए और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा जी कि हम इनका इलाज नहीं कर सकते, ये तो सुइसाइडर बॉम्बर की कंडीशन बनी हुई है इनकी। ये डॉक्टर के कोट इन कोट वर्ड थे और उनका कहना था कि इनको घुरकी हॉस्पिटल या किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएं जहां पे इनकी इन हड्डियों का इलाज हो सके। ये टूटी हड्डियां 16 महीनों से इसी तरह पता नहीं कोई कहाँ जुड़ गई है, कोई नहीं जुड़ी। सो इस कंडीशन में डॉक्टर्स भी इनको हाथ लगाने को तैयार नहीं है। हमारा वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा है कि इन गरीब जवान लड़कों का इलाज करवाया जाए और इनकी हत्तुल इम्कान मदद की जाए। ये इतने मजबूर और गरीब लोग हैं कि ये अपना रोज़ाना का खाना नहीं बर्दाश्त कर सकते। बहुत शुक्रिया।